السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کارگزار جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ اسلام نے نکاح کے معاملے میں اس بات کو ضروری قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کا نکاح مسلمان لڑکے ہی سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مسلمان لڑکا بھی کسی مشرک لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر ظاہری طور پر اس نے نکاح کی رسم انجام دے بھی لی تو شرعین اس کا اعتبار نہیں ہوگا، لیکن افسوس کہ تعلیمی اداروں اور ملازمت کے مواقع میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط نیز دینی تعلیم سے ناواقفیت اور ماں باپ کی طرف سے تربیت کے فقدان کے باعث ادھر کثرت سے بین مذہبی شادیوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کئی ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی اور بعد میں بڑی تکلیف سے گزری، یہاں تک کہ ان کو اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اس پس منظر میں گزارش کی جاتی ہے علماء اکرام عوامی جلسوں میں کثرت سے اس موضوع پر خطاب کریں اور لوگوں کو اس کے دینوی و آخری نقصانات سے آگاہ کریں۔ خواتین کے زیادہ سے زیادہ اجتماعات رکھے جائیں اور ان میں دوسرے اصلاحی موضوعات کے ساتھ ساتھ اس پہلو پر خصوصیت سے گفتگو کی جائے۔ ائمہ مساجد جمعے کے خطبات اور قرآن و حدیث کے دروس میں اس موضوع پر گفتگو کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ انہیں کس طرح اپنی لڑکیوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں۔ والدین اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں، لڑکوں اور لڑکیوں کے موبائل وغیرہ پر گہری نظر رکھیں، جہاں تک ہو سکے لڑکیوں کو گرلز اسکول میں پڑھانے کی کوشش کریں۔ اس بات کا اہتمام کریں کہ اسکول کے سوا ان کے اوقات گھر سے باہر نہ گزریں اور ان کو سمجھائیں کہ ایک مسلمان کے لیے مسلمان ہی زندگی کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ 14 اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں تعطل کے لیے حکومت ذمہ دار ہے اور اسے پیگاسس جاسوسی اور کسانوں کے مسائل پر بحث کا مطالبہ قبول کرتے ہوئے پارلیمانی جمہوریت کا احترام کرنا چاہیے۔ 14 جماعتوں کے 18 قائدین نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ حکومت نے متحدہ اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے ایک گمراہ کن مہم شروع کی ہے اور پارلیمنٹ کی کارروائی میں مسلسل خلل کے لیے اسے ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ بیان کے مطابق تعطل کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے جو اب بھی سرکش ہے اور دونوں ایوانوں میں بحث کے لیے اپوزیشن کے مطالبے کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ مرکز نے کہا کہ وہ دیگر اقلیتی طبقات کے ارکان کو ہندوستانی قومیت دینے کے لیے شہریت قانون میں مزید ترمیم پر غور نہیں کر رہا ہے۔ متنازع شہریت ترمیمی قانون 2019 کا مقصد پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کی ستائی ہوئی غیر مسلم اقلیتوں، ہندوؤں، سکھوں، جینوں، بدھسٹوں، پارسیوں اور عیسائیوں کو ہندوستانی شہریت دینا ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نیتانند رائے نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ اس سوال میں پوچھا گیا تھا کہ آیا حکومت میں دیگر اقلیتوں کو شامل کرتے ہوئے شہریت قانون میں ترمیم پر غور کر رہی ہے۔ مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری اور مہا وکاس اگھاڑی حکومت کے درمیان تنازع کا ایک نیا باب شروع ہو گیا ہے۔ ریاست کے کابینہ کے وزراء گورنر کے کام کرنے کے انداز پر سخت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ریاست کے وزیر توانائی نتن راوت نے بھی گورنر کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں بی جے پی کے لیڈر کے طور پر RSS کا کام کرنے والا کہا ہے اور کہا کہ یہ ہندوستانی جمہوریت کے خلاف ایک سازش ہے۔ وزیر توانائی نتن راوت نے کہا کہ گورنر بھگت سنگھ کوشیاری جس طرح یہاں کام کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آئینی عہدے کے لیے نہیں بلکہ RSS کے لیے بطور BJP لیڈر کام کر رہے ہیں۔ ان کا رویہ افسوسناک ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہندوستانی جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ دہلی میں واقع دوارکا سیکٹر 22 میں حج ہاؤس تعمیر کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اس سلسلے میں نہ صرف زمین الاٹ کیا جا چکا ہے بلکہ فنڈز بھی ریلیز کیے جانے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہے، لیکن اس تعمیر کو لے کر ADRF یعنی آل دوارکا ریسیڈنٹس فیڈریشن نے ہنگامہ شروع کر دیا ہے۔ ADRF نے حج ہاؤس کی تعمیر کے لیے دوارکا میں الاٹ زمین کے فیصلے کو کینسل کرنے کے لیے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل کو خط لکھا ہے، جس میں کئی زہر انگیز باتیں لکھی گئی ہے، جس پر سماج کے دانشور طبقے سے جڑے لوگوں نے اعتراض بھی ظاہر کیا ہے۔ دراصل ADRF نے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر اور دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کے نام جو خط لکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر دوارکا میں حج ہاؤس کی تعمیر ہوتی ہے تو فساد جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے اور نتیجہ کار ہندو طبقے کو علاقے سے ہجرت کرنے کی نوبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس خط کے تعلق سے مشہور و معروف سماجی کارکن شبنم ہاشمی نے سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ خط میں جس طرح کی باتیں لکھی گئی ہے وہ ناقابل قبول ہیں، کیونکہ حج ہاؤس کے دوارکا میں تعمیر ہونے سے کشمیر جیسے حالات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ شبنم ہاشمی نے ADRF کے خط کو فرقہ وارانہ ذہنیت کا عکاس ٹھہرایا ہے اور اس سلسلے میں ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ برائے کرم خط کو پڑھیے، یہ انتہائی فرقہ واریت پر مبنی ہے۔ میں دوارکا یا کسی دیگر مذہبی مقام پر حج ہاؤس بنائے جانے میں دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن آخر حج ہاؤس فساد کو فروغ کیسے دے سکتا ہے؟ سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے سربراہ اوم پرکاش راجبھر نے اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ اختلافات کی رپورٹس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ AIMIM اب بھی بھاگیہ داری سنکلپ مورچے میں شامل ہے۔
गुज़िश्ता रोज बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह के साथ राजभर की मीटिंग के बाद ऐसी ख्यासारियां शुरू हो गई थी कि वो उत्तर प्रदेश में 2022 के असेंबली इंतखाबात से कबल दोबारा जाफरानी जमात में शामिल हो सकते हैं। राजभर ने पीटीआई को बताया कि बीजेपी के रियासती सदर के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने ओवैसी से बातचीत की है। मैंने सिंह के साथ अपनी मुलाकात के बारे में वजाहत की है। ओवैसी के साथ इख्तलाफात की इतरात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि वो मोर्चे में बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि हम मोर्चे को मजबूत कर रहे हैं। 7 अगस्त को हम वाराणसी में ख्वातीन पसमानदा तबकात और इंतहाई पसमानदा तबकात की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करेंगे। 8 अगस्त को इलाहाबाद में एक और कॉन्फ्रेंस होगी। राजभर ने बताया कि बीजेपी के रियासती सदर से मुलाकात से कबल उन्होंने पीर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य से खैर सगाली मुलाकात की थी। उन्होंने ये बात दोहराई कि इनकी पार्टी बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कई हिंदुस्तानी शहरियों की दरख्वास्तों पर दिल्ली पुलिस से तफसीली स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। इन दरख्वास्तों में गुज़िश्ता साल कोविड-19 उसूलों की मुबैना खिलाफ वर्जी के जरिए तबलीगी जमात के इज्तिमा के शुरका को पनाह देने पर दर्ज FIR और क़ानूनी कार्रवाई को कालादम करने की ख्वाहिश की गई है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि स्टेट्स रिपोर्ट में वजाहत करनी चाहिए कि हर मुल्जिम का क्या किरदार है और इनके क़याम की मुद्दत कितनी थी। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DK ठाकुर की जानिब से मुहर्रम के लिए जारी की गई मुतनाज़ा गाइडलाइंस पर मुल्क गेर सतह पर आवाज़ बुलंद की जा रही है और योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के वाइस चांसलर और मारूफ इस्लामी स्कॉलर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर वासी ने भी शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मेरा कहना है कि हुकूमत दोनों फ़िरक़ों को आपस में लड़ाने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ये जान लेना चाहिए कि मुहर्रम सिर्फ शिया तबके का नहीं है बल्कि ये शिया सुन्नी दोनों का है और दोनों मिलकर इस गम को मनाते हैं। उन्होंने कहा कि DGP को मालूम होना चाहिए कि मुहर्रम अफसोस का मजहर होता है, खुशी का नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोगों ने कभी कोई गलत बात कही है तो इस पर दोनों फ़िरक़ों के मजहबी रहनुमा सर जोड़कर बैठें और इसको आपसी बातचीत से हल कर लिए। अब ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह हमारे मजहबी मामलों में मदाखलत करना बंद करें और इस तरह के मामलों को दोनों फ़िरक़ों के मजहबी रहनुमाओं पर छोड़ देना चाहिए। जमात उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी ने अपने एक अहम पैगाम में कहा है कि मसाजिद मुसलमानों के लिए मजहबी व दीनी शायर की हैसियत रखती है। ये अल्लाह का घर और इसके जिक्र व इबादत का मुकाम है। जब बंदा किसी ज़मीन को मस्जिद के लिए वक्फ करता है तो ख़त्ता ज़मीन बरह रास्त अल्लाह के हवाले कर देता है। इसके बाद वो जगह मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस और काबिल एहतराम हो जाती है। अब इनके किरदार का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों का आइनी, दीनी व ईमानी फरीज़ा है। मौजूदा हालात में मसाजिद की हिफाजत के लिए ज़्यादा बेदार रहने की ज़रूरत है। हाल ही में मुल्क में ऐसे बहुत सारे वाक़यात सामने आए हैं जिनमें फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत के हामिल ओहदेदारों ने मस्जिदों को गैर क़ानूनी बताकर मुनहदिम कर दिया या इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इनमें हमारी कमज़ोरियां भी शामिल हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मौजूदा हालात में मसाजिद के ज़िम्मेदारान दानिशमंदी का सबूत दें और चंद अहम उमूर पर फौरी तवज्जो फरमाएं ताकि मसाजिद के किरदार की हिफाजत की जा सके। एक तो मस्जिद की ज़मीन को मस्जिद के नाम से वक्फ किया जाए। दूसरा, मसाजिद की तामीर से कबल इसका नक्शा हुकूमत के महकमा तामीर से मंजूर कराया जाए। WHO ने कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स पर कम अज़ कम अवाखिर सितंबर तक इम्तना आयद करने पर जोर दिया है और कम और ज़्यादा आमदनी वाले मुल्कों में टीका अंदाजी की शरहों में नाबराबरी पर तशवीश का इजहार किया है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने जेनुआ में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि ज़्यादा आमदनी वाले मुल्कों में अब तक हर 100 अफराद के लिए तकरीबन 100 डोजेस दिए गए हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि इजराइल के साथ मुआहिदा इब्राहिम में शामिल होने का कोई इरादा नहीं, ना इसके साथ ताल्लुकात क़ायम करेंगे। अल अरबिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मशरिक़ व सतह में पायदार अमन के हुसूल का बेहतरीन रास्ता है। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि फ़लस्तीन इजराइल तनाज़े के पायदार हल के बगैर ख़ित्ते में हक़ीक़ी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का कोई रास्ता निकालना होगा। तेलुगु रियासतों के दरमियान आबी तनाज़े की यकसुई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना की जानिब से मुसालहत की पेशकश को आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कबूल नहीं किया है। आबी तनाज़े पर आंध्र प्रदेश की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त के 4 शुमरे को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने गुज़िश्ता समाअत के मौके पर तेलुगु रियासतों से अपनी वाबस्तगी की बुनियाद पर आबी तनाज़े के हल के लिए बाहमी मुशावरत और मसालहतकार का रोल अदा करने की पेशकश की थी। आंध्र प्रदेश की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा गया कि वो चीफ जस्टिस की मुसालहत के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस तनाज़े का फैसला करना चाहिए। तेलंगाना का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भोंगिर जिले के तरकापल्ली मंडल के मौजा वासलामरी का एक रोज़ा दौरा करते हुए गांव वालों के मसाइल का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने तकरीबन 3 घंटों तक 4 किलोमीटर पैदल चलते हुए घर घर पहुंचकर सूरत-ए-हाल के बारे में आगाही हासिल की। उन्होंने गाँव वालों को दलित बंधु स्कीम के तहत इमदाद की फराहमी का तयक़ुन दिया। इसके अलावा
पेंशन, राशन कार्ड, ज़राअत के लिए ट्रैक्टर और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी का वादा किया। चीफ मिनिस्टर ने इस गांव को तरक्की देने के लिए किया। 40 दिन के वक्फे में चीफ मिनिस्टर का ये दूसरी मरतबा वासलामरी का दौरा है। 22 जून को चीफ मिनिस्टर ने पहली मरतबा गांव का दौरा करते हुए गांव वालों के साथ इज्तिमाई लंच किया था। 12 बजे दिन से दोपहर 3 बजे तक चीफ मिनिस्टर ने अवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदारों के हमरा दलित खानदानों से मुलाकात की। दलित वाड़े के तकरीबन 60 मकानात का शख्सी तौर पर चीफ मिनिस्टर ने दौरा किया और घर वालों से इनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने बेघर दलित खानदानों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का वादा किया। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि टीआरएस पार्टी के 60 लाख अरकान खानदान हैं, जिसके सरबराह चीफ मिनिस्टर केसीआर हैं। खानदान के हर रुकन का पार्टी खास ख्याल रखेगी। केटीआर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुख्तलिफ हादसात में हलाक हुए 80 पार्टी कारकुनों के अरकान खानदान में फीकस 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस रकम तकसीम की और इन्हें हौसला दिया और साथ में लंच करने के बाद खिताब करते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया। केटीआर ने तेलंगाना भवन पहुंचे 80 खानदानों का खैर मकदम करते हुए कहा कि यहाँ पहुँचने वालों में किसी का शौहर, किसी का भाई, किसी का बेटा हमसे जुदा हो गए हैं, मगर टीआरएस पार्टी इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी। कई खानदानों ने बच्चों की अच्छी तालीम, घर मुलाजमत ना होने के अलावा दूसरे मसाइल से वाकिफ़ करवाया है, जिसको नोट कर लिया गया है। इनके बच्चों को रेसिडेंशियल स्कूल में तालीम दिलवाई जाएगी। इसके अलावा मुलाजमतों और पेंशन ना मिलने की शिकायतें की गई है, इन सब को नोट कर लिया गया है। आइंदा 15 दिन में इन मसाइल को हल कराने की पार्टी जिम्मेदारी कबूल करेगी। शहर हैदराबाद में एक के बाद एक कोरोना वैक्सीन मराकज़ बंद हो रहे हैं। शहर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फिलहाल टीका अंदाजी की मुहिम रोक दी गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में चंद कम्युनिटी हॉल्स, फंक्शन हॉल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स और एरिया हॉस्पिटल्स के मराकज़ में ही कोरोना के टीके दिए जा रहे हैं। इब्तिदा में 90 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और 10 हॉस्पिटल्स में टीके दिए गए, जिससे अवाम को वैक्सीन लेने में काफ़ी सहूलतें हासिल हुई। ताहम गुज़िश्ता 1 माह से अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में टीका देने के अमल को कम कर दिया गया है, जिससे अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। शहरी हुदूद में माजी में 100 टीके अंदाजी के मराकज़ थे, जिसको घटाकर अब 54 मराकज़ तक महदूद कर दिया गया है। जीएचएमसी के हुदूद में महकमा सेहत की जानिब से चलाई जा रही खुसूसी मुहिम के टीका मराकज़ के अलावा किंगकोठी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नामपल्ली, मलकपेट एरिया हॉस्पिटल्स में वैक्सीन दिए जा रहे हैं। माजी में फीवर हॉस्पिटल में भी टीके दिए गए, जहाँ अब बंद कर दिए गए हैं। टीके मराकज़ की निस्बत तादाद घट जाने से मौजूदा मराकज़ पर अवाम के हुजूम में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। तेलंगाना में आसमान साफ होने और दर्ज हरारत 29 और 33 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के खुदकार मौसमी स्टेशन ने आज़म तरीन दर्ज हरारत 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। मरकज़ी महकमा मौसमियात ने इस हफ्ते के ख़त्म तक मौसम के इसी तरह बरकरार रहने की पेशकशी की है। कम से कम दर्ज हरारत 23 डिग्री चंदानगर में रिकॉर्ड किया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज हुकूमत को हिदायत दी कि वो रियासत भर के अराजियात का सर्वे करवाते हुए सरकारी अराजियात की निशानदेही करें। चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने एक केस की समाअत करते हुए हुकूमत को यह अहकाम जारी किए। डिवीजन बेंच ने कहा कि वक्फे से अदालत के इल्म में यह बात आ रही है कि सरकारी अराजियात पर कब्जे हो रहे हैं और सरकारी ज़मीनों की खरीदो फरोख्त हो रही है, जिसके पेश नज़र 23 अजला के कलेक्टर्स फौरी तौर पर सरकारी अराजियात की निशानदेही के लिए सर्वे के कामों को शुरू करें और एक मुकर्ररा वक्त में इसे मुकम्मिल करें। अदालत ने कहा कि सरकारी अराजियात की निशानदेही करते हुए जियो टैगिंग के जरिए तमाम रिकॉर्ड्स का इंदराज करें।